Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें पिछले क्लास में हमने जो पहला लेक्चर था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का उसमें डिस्कस किया था। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही आएंगे। उसका आज सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर के साथ साथ किस तरह से इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इन आवर डेली लाइफ, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Several thousand complexes coordination compounds are known and number is constantly increasing. It is necessary to adopt a uniform system of naming these compounds. The International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC, published rule for the systematic naming of coordination compounds in 1957. Some modification in these rules were made in 1962 and 1972. However, trivial names of certain coordination compounds are still used, that is potassium ferrocyanide and potassium ferricyanide are called as, this is potassium ferrocyanide and this is potassium ferricyanide even today. The following rules are adopted these days for naming all types of coordination compounds. The first point is, if a coordination compound is ionic, the name of cation is given first, whether or not it is the complex ion. If coordination compound is ionic, the name of the cation is given first, whether or not it is the complex ion. It is followed by the name of anion, just like naming a simple salt. The names of cations and anions are separated by a space. This is the first rule. Now, within a complex ion, the ligands are named first, followed by the metal ion. Now, names of the ligands किस तरह से करते हैं? Anionic ligands ending with "ide" are named by replacing "ide" with suffix "o" or replacing "e" by "o. Anion like fluoride, symbol F minus, name as ligand fluorido. इस तरह से इनके नाम जब ligand के फॉर्म में लिखे जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इनके नाम ये लिखे जाएंगे। इसी तरह क्लोराइड है Cl माइनस, क्लोराइडो लिखा जाएगा। ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, साइनाइड साइनो, ऑक्साइड O2 माइनस ऑक्सो, ऑक्साइड के लिए लिखेंगे। हाइड्रोक्सी के लिए हाइड्रोक्सो, सल्फाइड के लिए सल्फाइडो और NH2 माइनस के लिए जो कि एमाइड ग्रुप है एमिडो लिखेंगे। नाइट्राइड N3 माइनस नाइट्राइडो, फॉस्फाइड P3 माइनस फॉस्फाइडो, एजाइड N3 माइनस एजाइडो और इमाइड NH2 माइनस इमिडो एंड peroxide ग्रुप O2 माइनस लिखा जाएगा पराक्सो। Ligands whose names end in ite or ate becomes ito or ato, that is by replacing the ending E with O. Anion carbonate, symbol CO2 minus, written as carbonate, carbonato. Oxalate as oxalato. Sulfate as sulfato. Nitrate as nitrato.
and sulfite as sulfito and acetate as aceto. तो इस तरह से जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसके नाम लिखे जाएंगे तो ये वर्ड यूज होगा। नाइट्राइट, इसको दो तरह से लिखा जाएगा, ONO माइनस। जब ये O के थ्रू बॉन्डेड होगा यानी बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन, then it is known as nitrite to O. NO2 minus same ही है दोनों चीज, when bonded through nitrogen it is written as nitrite to N. Now chlorate, ClO3 minus chlorato, thiosulfate, thiosulfato। अब उसके बाद ये थायोसाइनाइट है, HCN थायोसाइनेटो, और थायोसाइनाइटो S लिखेंगे जब S अटैच होगा सेंट्रल मेटल से, और आइसोथायोसाइनेट व्हेन N is attached या bonded through nitrogen, then this is thiocyanito N। यानी N और S जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल आयन को, तो जिस इनके थ्रू हो रहा है तो इनको आगे लिखेंगे। Now neutral ligands are given the same name as the neutral molecules, like C6H5N, or it is written as PY. This is pyridine structure ये है इसका। PH3 written as phosphine, C6H5 whole thrice P, this is triphenyl phosphine। उसके बाद है CH2NH2, CH2NH2, this is ethane 1,2 diamine। अगला है डाइपाइराइडिल, जिनको शॉर्ट में क्या लिखेंगे ये भी आगे देखना है। उसके बाद है NH2CSNH2, this is thiourea। However, there are certain exceptions to this rule। H2O written को लिखेंगे एक्को या एक्वा। उसके बाद कार्बोनिल, CS thiocarbonyl, NH3 amine and NO को लिखेंगे नाइट्रोसिल। In the case of polytentate amino ligands, a single M is used in the spelling. That is, amine is written as diene। ये पूरा बाइडेंडेट लिगेंड है, इसमें दो नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसको हम चार्ट में क्या लिखते हैं, डाईन। Now positively charged ligands have suffix -ium, ammonium, NH4 plus को ammonium, NO plus हो जाएगा nitrosonium, NH2 NH3 plus hydroxynium, and NO2 plus is written as nitronium। Now amphidentate ligands are named as follows: cyanide CN, साइनाइडो और साइनाइडो C, क्योंकि C यहाँ पे डोनेटिंग एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जब आइसोसाइनाइड होगा तो N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, देन इट इज रिटन एज आइसोसाइनाइडो और साइनाइडो N। इस तरह से नाइट्रो, जब ये नाइट्रोजन जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्रो और नाइट्राइटो N, एंड जब इसको ONO यानी ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो नाइट्राइटो और नाइट्राइटो O लिखेंगे। इसी तरह साइनेट O डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर तो साइनाइटो O, एंड आइसोसाइनाइड जब N डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइटो और साइनाइटो N। तो इस तरह से नाम लिखते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इन सारी चीजों को याद रखना है। If the number of particular ligand is more than one in the complex ion, the number is indicated by using numbers such as di, tri, tetra, penta, hexa, etc. However, when the name of the ligand includes a number, when the names of the ligand includes a number, e.g. dipyridine, ethylene diamine, then bis, tris, tetra, kis are used in place of di, tri, tetra, etc. इस तरह के लिगेंड्स जब होंगे तब हम डाई ट्राई टेट्रा की जगह बिस ट्रिस टेट्रा किस इस तरह से यूज करेंगे। नाउ ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर without separation by hyphen. This rule have come in force after 1971 convention.
In the old system, the ligands are named in the order of negative, neutral, and positive without separation by hyphens. When there are several ligands of same kind, these are listed alphabetically. For example, in complex CrNH3-4Cl-NO2+, the ligands are named in the order of amine, chlorido, and nitrito in accordance to new convention. However, according to old convention, the ligands are named in the order of chlorido, nitrito, N, and amine. First, the negative ligands in alphabetical order and then neutral ligands. Other point is complex positive ions and neutral coordination compounds have no special ending with the name of central metal, but complex negative ions always in the suffix "ate". In most of the cases, the suffix "ate" is fixed to English name of the metal, but in the some cases, "ate" is fixed with Latin name of the metals. Name of the component present in coordination sphere are written in continuum. जैसे कि ये K3FeCN5NO है, तो ये पोटेशियम, फिर पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड कंटिन्यूअस। ये जो सेंट्रल मेटल जो कॉम्प्लेक्स आयन है स्फीयर में, इसको हम बिना स्पेस दिए हुए बीच में एक साथ इस तरह से लिखेंगे कंटिन्यूअसली, लेकिन पोटेशियम लिखने के बाद यहाँ बीच में स्पेस देंगे। अब नेम ऑफ द मेटल्स क्या लिखेंगे? एलिमेंट मेटल एज नेम इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्टेट, निकिल को निकलेट, क्रोमियम को क्रोमेट, आयरन को फेरेट, कॉपर को क्यूप्रेट, उसके बाद सिल्वर को अर्जेंटेट लिखेंगे एंड लेड को प्लम्बेट। इन केस ऑफ मरकरी we may use both mercurate and hydrazine. The name of the neutral coordination compound is given in one word only, and the name of NiCO4 is tetracarbonyl nickel 0. The following example will take the rule more clear. Coordination compounds के नाम किस तरह से लिखे जा रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। Coordination compounds containing कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यहाँ जो इसके साथ ये कैटायन है अटैच है और ये एनायन है, दिस कंपाउंड इज नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका नाम पहले हम किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन ये है और ये नेगेटिव आयन है, सिंपल आयन है। दिस इज जिसको क्या कहते हैं? काउंटर आयन। इसका हो जाएगा 6 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। उसी तरह ये CONH3 4H2O Cl है, तो यह अल्फाबेटिकली लेंगे तो हो जाएगा ये 4 एमिनो ग्रुप है टेट्रा एमीन इक्वो, उसके बाद क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd, उसके बाद क्या है बाहर? क्लोराइड। तो स्फीयर के बाहर जो है उसको लास्ट में लिखेंगे और ये पूरा कितना है? कॉम्प्लेक्स आयन का नाम है। अब उसके बाद CuEN2 स्फीयर में है SO4, दिस इज काउंटर आयन, लास्ट में लिखेंगे। En इस तरह के लिगेंड्स के लिए इस तरह यूज करते हैं, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा बिस। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, En लिखते हैं शॉर्ट में। उसके बाद कॉपर 2nd सल्फेट। इसी तरह CrH2O4Cl2 टेट्रा एक्को डाइक्लोरिडो आयन है, ये पूरा टेट्रा एक्को डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd आयन है। उसके बाद अगला कंपाउंड है FeH2O4 C2H4 twice, C2H4O4 जो है ये 1 है और पूरा जो है ये 2, फिर SO4। तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्को, उसके बाद है ये ऑक्सलेट ग्रुप, ऑक्सलेट आयरन 3rd सल्फेट। उसके बाद अगला कंपाउंड CrNH3 4ONOClN2 टेट्रामीन है या टेट्राएमीन। उसके बाद है क्लोरिडो, फिर O के थ्रू अटैच है, ये O आगे लिखा हुआ है क्रोमियम से, तो नाइट्राइटो O
क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। तो इस तरह से ये नाम लिखे जाते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस Cl, डाई एमीन सिल्वर, 2 बार है NH3, 2 है यहाँ पे NH3 होल ट्वाइस है, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। अगला है CONH3, इसमें सब क्या है, जो काउंटर आयन है वो एनायन है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन जितने हैं वो सारे कैटायन है। उसके बाद ये पेंटा एमिनो, फिर है आइसोथायोसाइनाइटो लिखेंगे या साइनाइटो एन लिखेंगे। आइसोथायोसाइनाइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद अगला है C6H5 थ्राइस पी होल थ्राइस है ये पूरा। उसके बाद RHCl, इसका ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फिर है रोडियम फर्स्ट क्लोराइड। अगला कंपाउंड है COEN2F2ClO2, इस इथेन, इसकी जगह लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाईएमीन, डाईफ्लोरिडो का कोबाल्ट थर्ड, लास्ट बाहर क्या है पर क्लोरेट। PTNH3 होल 4 NO2ClSO4, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन। उसके बाद है क्लोराइडो, फिर नाइट्रो एन के थ्रू है ये, नाइट्रो एन प्लेटिनम फोर्थ, बार क्या है सल्फेट। अगला है CrNH3H2O होल थ्राइस Cl3, ट्राईएमीन ट्राईएक्वोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगला एग्जांपल CO H2NCH2CH2NH2, दिस इज द ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन, EN2 ना लिख करके ये पूरा नाम दिया है, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायनिक आयन। उस पहले वाले में क्या था कि कंपाउंड्स जो में एनायनिक जो पार्ट, कैटायनिक पार्ट जो था वो कॉम्प्लेक्स आयन था, और जो एनायनिक पार्ट था वो coordination compounds having containing complex anionic ion, इसमें एन आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, और पहले वाला जो एग्जांपल बनाया उसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो था वो कैटायन था। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, K4FeCN6। अब इसमें जो है इसका नाम पहले लिखेंगे, वहां पे क्लोराइड सल्फेट ये सब था तो बाद में लिखते थे, लेकिन जब एनायनिक आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक आयन होगा, तो पॉजिटिव जो पार्ट है मेटल पार्ट उसको हम पहले लिखेंगे, यानी काउंटर आयन का नाम पहले लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा पोटेशियम, फिर है हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अगले का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, यहाँ पे वैलेंसी अलग अलग हो जाती है एपी की। उसके बाद K3CrC2O4 होल थ्राइस पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, है ना, K3COC2H4O2 है, दिस इज ऑक्सलेट ग्रुप, ये भी ऑक्सलेट ग्रुप। तो पोटेशियम, फिर है डाई क्लोरो ऑक्सलेटो कोबाल्ट थर्ड, K2HG4 पोटेशियम ट्राईआइडो टेट्राआइडो पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट सेकंड। उसी तरह और एग्जांपल है K2PCl6 पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ। उसके बाद ये अगला कंपाउंड NaHgCN ट्वाइस सोडियम साइनोजेनरेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। NiCN4 2- टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन है ये। Na3CONO2 6 सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। उसके बाद है K3FeCN5NO पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड। उसके बाद हो जाएगा HgCOCNS4 मरकरी सेकंड, टेट्रा थायोसाइनो कोबाल्ट सेकंड, या साइनो लिखते तो एन लिखते आगे।
उसके बाद KCr4FO पोटेशियम टेट्राफ्लोरो आयोडोक्रोमेट। फिफ्थ K2ZnOH whole thrice पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। इसी तरह इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट सेकंड। तो इस तरह से जब कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो एनायन होगा, यानी कॉम्प्लेक्स एनायन होगा और काउंटर आयन कैटायन होगा तो ऐसे नाम लिखेंगे। और उससे पहले बताया था कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन सिंपल एनायन होगा तो नाम किस तरह से लिखेंगे। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एंड एनायनिक आयंस। अब दोनों ही कैटायन और एनायन दोनों ही जब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, तब जैसे ये है CrNH3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस दोनों का नाम लिखेंगे। पहले वाले का हेक्सा एमिनो क्रोमियम थर्ड, उसके बाद हेक्सा साइनो कोबाल्ट थर्ड। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें हो जाएगा पहले वाले का टेट्रा एमिनो प्लेटिनम सेकंड एंड टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट सेकंड। अगला एग्जांपल, दो स्फीयर है इसमें, तो हेक्सा एमिनो क्रोमियम थर्ड एंड ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट थर्ड। अगला एग्जांपल, PTPY4 PTCl4 टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम सेकंड, फर्स्ट पार्ट टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। उसके बाद COCl2 NH3 होल 4 होल पूरे का होल थ्राइस है CrCl6। तो ये हो जाएगा टेट्रा एमिनो, उसके बाद है डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड और सेकंड पार्ट का नाम है हेक्सा साइनोक्रोमेट थर्ड। तो दोनों ही पार्ट का नाम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है CrNH3 होल 5 NHCl ZnCl4 पेंटा एमिनो आइसोथायोसाइनाइडो क्रोमियम थर्ड, इस पार्ट का नाम होगा पूरा। उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट सेकंड, AgNH3 ट्वाइस, फिर AgCN2, तो हो जाएगा इसका डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेटेट फर्स्ट। तो इस तरह से तीन तरह के किस तरह से नाम लिखते हैं। उसके बाद है नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसको पहले कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखा, फिर ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें कि कॉम्प्लेक्स दोनों ही थे, कॉम्प्लेक्स आयन दोनों पार्ट थे। अब इसमें नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे FeCO होल 5, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। उसके बाद CONO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस टेट्रा एमीन ट्राई नाइट्रो N कोबाल्ट थर्ड, ट्राई नाइट्रो N से ये अटैच है कोबाल्ट के साथ, तो ट्राई नाइट्रो N कोबाल्ट थर्ड। NiDMG2, DMG क्या होता है, डाई मेथिल ग्लाइकोमेटो, ये पिछले क्लास में बताया था। ये हो जाएगा बिस डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीनेटो निकिल सेकंड। उसी तरह ये CrPPH3CO5 है, पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा पहले, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्रोमियम 0। उसके बाद PTClBrNH3py, एमीन ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोरिडो पायरिडीन प्लेटिनम सेकंड। लास्ट है MN3CO12 डोडिए CO12 को लिखेंगे क्योंकि ये 12 यहाँ पे एलिमेंट है, तो डोडेक कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। Now writing the formula of coordination compounds from its IUPAC नाम। तो अभी तक IUPAC नेम लिखा स्ट्रक्चर देख करके
स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के उसका आईयूपीएसी नाम किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिखते हैं। अब है राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम इट्स आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम लिखना होगा देख करके उसका जो आईयूपीएसी नेम देख करके कंपाउंड का फार्मूला लिखना होगा। फॉलोइंग रूल्स आर followed in writing the formula of a coordination compound. First, formula of the cation whether simple or complex is written first, followed by that of an anion. The formula of cation whether simple or complex is written first, followed by that of anion. The coordination sphere is written in square brackets. The following sequence of symbols within the coordination sphere is followed. First metal ion लिखेंगे, उसके बाद anionic ligands, then neutral ligands, and then cationic ligands. If there are a number of ligands of same type, anionic, neutral, or cationic, they are listed alphabetically according to first alphabet of their formula. Formula से हम alphabet लेंगे, ना कि उनके नाम से. For example, if NO2 minus a nitride, sulfate, OH, Br, etc. are present, they are written as Br, NO3, OH, and इस फार्मूले में जो वर्ड पहला होगा उससे हम अल्फाबेटिकली उसको लिखेंगे. When two ligands have same definite atom, the ligands with fewer such atom is cited first, followed by the ligand having more atoms. When two ligands have same definite atom, the ligands with fewer such atoms is cited first, followed by the ligand having more atoms. For example, sulfate precedes H2O3. यहाँ पे एटम ज्यादा है तो किसको पहले लिखेंगे? सल्फेट को. When the number of defining atoms are same, subsequent symbol decide the sequence. For example, NH2 minus proceed NO2 minus. जब दोनों में पहला वर्ड सेम है तो सेकंड वर्ड में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, because H comes before O. Now polyatomic ligands are enclosed. Polyatomic ligands are enclosed in parentheses, but all ligands are formulated without any space in between. The number of cations or anion to be written in the formula is calculated on the basis that total positive on the cation must be equal to the total negative charge on the anion, as the complex as a whole is electrically neutral. Sometimes abbreviations for certain ligands are used in parentheses instead of their structural formula. For example, EN लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन के लिए EN लिखते हैं, और डाइमेथिल ग्लाइक्सोमाइनेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सामाइटोमेटो के लिए DMG लिखते हैं. उसके बाद डाइइन लिखते हैं, डाई एथिलीन ट्राइएमीन के लिए डाई एथिलीन ट्राइएमीन के लिए डाइन लिखते हैं. PY पेरिडीन पाइराइडिल के लिए PY लिखते हैं. उसके बाद ट्राइइन ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन के लिए ट्राइइन लिखा जाता है. एक्सैक लिखा जाता है एसिटिल एसीटोनेटो एंड डी पाई. यानी ये सारी चीजें याद रखनी होगी कि इनके लिए हम शार्ट में क्या लिखते हैं. एक्सैक लिखेंगे एसिटोनेटो एंड डाइफेनिल डाइपैराइडिल के लिए लिखेंगे इथेन 1,2-डाइएमीन टेट्रा एसिटो के लिए लिखते हैं ADTA एथेन 1,2-डाइएमीन टेट्रा एसिटो. और PY बताया फेन लिखते हैं 1,10 फेनिल फिनेंथ्रोलीन, और PY लिखते हैं पायराइडिन या पायराइडिल लिखते हैं इसको. उसके बाद ग्लाइसिनेटो के लिए GLY लिखते हैं, ट्राइफाई लिखते हैं ट्राई पायराइडिल के लिए, और OX लिखते हैं ऑक्सलेटो के लिए.
तो ये चीजें जब लिखी होंगी तो ये चीजें, तो इसका मतलब ये होगा, तो इन चीजों को लर्न करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, few examples are given here to explain the above rules. इसका नाम, जैसे ये IUPAC नेम लिखा है, तो इसका फॉर्मूला लिखना है. पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट थर्ड. तो ये पूरा एक साथ है. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है. पोटेशियम कैटायन है, तो कैटायन और एनायन हो जाएगा. प्लेटिनेट सेकंड है. उसके बाद एमीन और प्लेटिनम के साथ क्या है? ट्राइक्लोरिडो मींस PTCl3, ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड, और NH3. अब पूरे पे चार्ज नहीं पता, K प्लस यहाँ पे है, इसको +1 होना चाहिए, हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस कैरीड बाय लिगेंड्स. इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम है +2, उसके बाद है Cl3 और Cl पे होता है -1, तो ये हो जाएगा 3 लिगेंड्स पे एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज कैरीड बाय लिगेंड्स करना है हमें. तो ये प्लेटिनम का हो गया पहले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम +2, प्लस क्लोराइड Cl3 है तो 3 × -1. उसके बाद एमिनो का होता है 0 चार्ज होता है एमिनो, क्योंकि मॉलिक्यूल है न्यूट्रल. तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो X इज इक्वल टू आएगा -1. तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि ये K प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा. Thus the charge on the complex ion is -1. Therefore the formula of the coordination compound is KPTCl3NH3. उसके बाद अगला नाम है टेट्राएमीन एक्वोक्लोरिडो कोबाल्ट. तो ये, और उसके बाद क्लोराइड, यानी जो काउंटर आयन है वो एनायन है, ये क्या है? कैटायन है. कैटायन इसमें CO, क्या है? क्लोरिडो कोबाल्ट, तो COCl. उसके बाद है टेट्राएमीन और एक्वो कितना है? 1. टेट्राएमीन एक्वो, तो COCl के बाद अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम. Cl के बाद H2O हो जाएगा, उसके बाद NH3. टेट्राएमीन है तो NH3 4 ऊपर X हो जाएगा. और इसके क्लोराइड है तो Cl- होगा, और इसका चार्ज हमें निकालना है. इस पे कितना होगा? तो X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड. अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 3. ठीक है. और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 होता है. एक ही क्लोरीन है तो 3 प्लस -1. ऑक्सीजन का H2O का होता है 0, या NH3 4 है और NH3 भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है, तो 0 4 × 0 हो जाएगा. अब टोटल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आता है +2, यानी यहाँ पे +2 होगा. तो क्लोराइड पे एक ही माइनस चार्ज है, तो 2 क्लोराइड जोड़ेंगे तब बैलेंस होगा. The anion neutralize the charge on the cation. Therefore, the formula of the given coordination compound is, इस पे आया था 2+, तो ये भी 2- होना चाहिए, तो 2Cl2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा. अगला नाम है सोडियम इथेन 1,2-डाई एमीन टेट्राएसीटोक्रोमेट सेकंड. इसको क्या कहते हैं? EDTA. और कैटायन यहाँ पे क्या है? सोडियम. एनायन है Cr के साथ ये लगा हुआ है EDTA, एक ही है, डाई एमिनो टेट्राएसीटोक्रोमेट. X हमें निकालना है. X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स. तो क्रोमियम का है +2 प्लस ये हो जाएगा इसका 4 डोनेटिंग एटम होते हैं EDTA में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंटू कितना नंबर कितना है? 1 इज इक्वल टू -1. तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू -2. Thus 2Na+ ion neutralize the charge on the cations. अब जब इस पे -2 आ रहा है तो यहाँ Na भी 2 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा Na2CrEDTA. The formula of the given compound is this. Now chlorido bis ethane 1,2-diamine nitrito N cobalt third ion.
ये पूरा क्या है, क्लोरिडो, एक कॉम्प्लेक्स एनायन, COClNO2 हो जाएगा। क्या है, क्लोरिडो बिस, तो En2, नाइट्राइटो N यानी C, तो इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, CO के साथ पहले Cl होगा, फिर NO2, फिर En होल ट्वाइस, X निकालना है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1, तो 1 ही है, तो 1 इंटू 1 -1। NO2 का होता है -1, तो 1 इंटू -1। En का दो डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम्स होते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा En का होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0। पूरा हम सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे आयन पे ये +1 लिखा जाएगा, ये आयन का नेम था। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दोनों ही तरह से कि नेम दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, ये अभी लास्ट में बताया, और उससे पहले बताया कि स्ट्रक्चर देख करके या फॉर्मूला देख करके उसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये दोनों ही जो अब तक जितना भी पढ़ा वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने के लिए इन टर्म्स को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और सारी चीजें याद करना जरूरी है। Now, importance of coordination compounds. The complexes are of immense importance on account of their application in various fields. During complex formation, there are drastic change in the properties of metal, atom or ion, and these changes in properties are made use of an applications of metal complexes. तो अब इसके जो एप्लीकेशन से 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, coordination compounds find their application in both qualitative and quantitative methods of analysis. The separation of Ag plus from Ag2 plus in the first group of analysis is based on the fact that white silver chloride is soluble in aqueous ammonia and Hg2Cl2 forms a black insoluble मटेरियल। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो AgCl कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है AgNH3 Ag2Cl plus 2Hg6H2O, और अगर इसमें Hg प्रेजेंट है तो Hg2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स ब्लैक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, जिससे कि हम इसको अलग कर सकते हैं कि ये इसका कंपाउंड ये क्या है, मरकरी है इसके साथ, और जो सॉल्युबल हो गया उसमें सिल्वर, और साथ में HCl और H2O बनता है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ सेकेंड बी ग्रुप, जब प्रैक्टिकल करते हो जो सॉल्ट से एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स निकालने में, तो separation of second B group sulfides from second A group sulfide is based on the fact that sulfide of second B group form complex sulfide with yellow ammonium sulfide, which are soluble, while sulfides of first A group do not react. तो second A group अगर present है तो कोई भी precipitate नहीं आएगा, लेकिन second B group present है तो yellow ammonium sulfate के साथ कोई ना कोई precipitate आएगा। एंटीमनी है तो येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आर्सेनिक है तो येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एसएन है अगर तो इसके साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके डिफरेंट कलर से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ cupric ion is based on the formation of blue tetraamine copper sulfate complex, which gives a deep blue colored solution. NH3 के साथ जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। इट आल्सो फॉर्म्स ए चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से होगा तो चॉकलेट प्रेसिपिटेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा एंड पोटेशियम सल्फेट। Now ferric ion is detected by the formation of blood red colored complex with KSCN. It reacts with
iron form this type of complex ion gives blood red color. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाता है K प्लस FeSCl2 प्लस और दो आयन इस तरह से, इस आयन का कलर ब्लड रेड कलर का होता है. The detection and estimation of nickel ion is based on the formation of scarlet red complex with dimethyl chloroxime. तो निकिल क्लोराइड प्रेजेंट है तो डाइमेथिल क्लोरोक्साइम के साथ NH4OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है. दिस इज द स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट एंड दिस इज कीलेट कंपाउंड या कीलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड NH4Cl H2O अलग होता है. Many ligands, that is organic reagents, are used for the gravimetric estimation of number of metal ions. So many ligands are used for the gravimetric estimation of a number of metal ions. So metal ion to be estimated with the help of organic reagent. तो ये organic reagent के नेम में जो यूज होते हैं और ये मेटल आयन. क्यूप्रिक आयन के लिए बेंजोइन ऑक्साइड यूज होता है जो कि सारे क्या है ऑर्गेनिक रिएजेंट. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है इसके साथ. निकिल के लिए डाइमेथिल क्लोरोक्साइम ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है डाइमेथिल क्लोरोक्साइम. फेरिक एल्युमिनियम के लिए 110 फेनेंथ्रोलिन एंड एल्युमिनियम के लिए 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन एंड कोबाल्ट के लिए अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल. तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इन आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिससे कि इनकी पहचान होती है और इसमें कितने नंबर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के उसको हम काउंट कर सकते हैं. Now EDTA is used as complex agent in volumetric analysis of metal ion like calcium ion, magnesium ion and zinc ion. The coordination compounds of the transition metals exhibit a variety of colors. This property is utilized in the calorimetric analysis for the estimation of many metals. Other analytical applications of coordination compounds are oxidation reduction indicator, estimation of hardness in water, sequestering reagent and solvent extraction. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसकी मेटलर्जिकल ऑपरेशन में. Silver and gold are extracted by the use of complex formation. Silver ore is treated with sodium cyanide solution with continuous passing of air through solution. Silver dissolved as a cyanide complex and pure silver is precipitated by the addition of scrap zinc. Now, silver cyanide reacts with NaCN to form Na. This type of NaS is AgCN2 complex compound and Na2S removed. Now Na2S reacts with H5O2 and H2O forms sodium sulfate NaOH and S. और ये जो कंपाउंड बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो ये Ag को अलग कर देता है, जिंक कंपाउंड बना लेता है और सिल्वर सेपरेट हो जाती है. Native Ag and Au are also dissolved in NaCN solution in presence of oxygen of air. तो Au अगर यहाँ पे है तो इसी तरह जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो Au अलग हो जाता है और Ag का रिएक्शन देखा ही. सिल्वर NaCN से रिएक्शन करता है in presence of O2, it forms this types of coordination compound. Ag and Au are precipitated by addition of scrap zinc. तो यहाँ पे भी इस कंपाउंड का जिंक से रिएक्शन कराने पे Ag है या Au है तो वो सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे जिंक आ जाएगा इस तरह से. Nickel is extracted by converting it into a volatile complex, nickel carbonyl, by use of carbon monoxide. The complex decomposes on heating again into nickel and carbon monoxide. Nickel reacts associated with other metals, reacts with carbon monoxide to form the tetracarbonyl nickel, which on heating gives nickel and carbon monoxide. Now, third application is in photography. In photography, the image on the negative is fixed by dissolving all the remaining silver halides with hypo solution
in the form of soluble complex. The reaction इस तरह से होता है. Now electroplating. इसमें क्या है? फोटोग्राफी. The image on the negative is fixed by dissolving all remaining silver highlights. Silver highlights के साथ dissolve करते हैं with hypo solution in form of soluble complex बनता है और जो image है वो negative पे आ जाती है. Now electroplating. Metal complexes release metal slowly and thus give a uniform coating in electroplating of the metal on the desired object. Cyanocomplexes of silver, gold, copper, etc. are used for the electrodeposition of these metals. Now biological process. अगला application most important है. Biological process में भी इनकी importance है. Coordination compounds play many important roles in animals and plants. They are essential in storage and transport of oxygen as electron transfer agents, as catalysts and photosynthesis. Three important examples are given here. First is hemoglobin. Hemoglobin is a protein which is present in blood. The main function of hemoglobin is to carry oxygen in blood from the lungs to the tissue, where it delivers the oxygen molecule to myoglobin. The quadridentate macrocyclic ligand, the porphyrin molecule, is an important part of hemoglobin structure. The 2H+ ion bonded to nitrogen atoms are displaced and the metal ion coordinates simultaneously with all 4 nitrogen atoms. porphyrin group होता है ये, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन भी होती है और 2 नहीं. तो ये चारों जो नाइट्रोजन एटम है ये इस बीच में यहाँ आयरन के साथ अटैच होकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. दिस इज द porphyrin and this is F2+4 pyrin. The porphyrin, the complex formed from porphyrin is called porphyrin. The Fe complex is called heme. तो ये Fe complex है, this is the heme. Hemoglobin molecule consists 4 heme groups embedded in a protein molecule. देखा अभी 4 ग्रुप थे. The iron in the heme group has the oxidation number +2. It is coordinated to the 4 nitrogen donor atoms in the porphyrin group and also to a nitrogen donor atom in a ligand group which is attached to the protein. The 6th ligand is a water molecule which binds to the ferrous ion on the other side of the ring. The complete the octahedral complex. फिर से इसको देखते हैं. The iron in the heme group has oxidation number +2. It is coordinated to the 4 nitrogen donor atom in the porphyrin group and also to a nitrogen donor atom in a liquid group which is attached to the protein. तो यहाँ पे 4 porphyrin group attached with the iron atom, which is known as Fe2 plus porphyrin or known as heme. The 6th ligand is a water molecule which bind to the Fe2 plus ion on the other side of the ring to complete the octahedral complex. Under these conditions, the hemoglobin molecule is called deoxyhemoglobin and has a blue color. जब water attach होता है hemoglobin में, तो ये कहलाता है deoxyhemoglobin and has a blue color. The water ligands can be replaced readily by molecular oxygen to form red-colored oxyhemoglobin. This hemoglobin flows from lungs to tissues where it is अगेन डीऑक्सीजनेटेड. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये है. 4 लिगेंड्स जो नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं Fe के साथ और 5th and 6th एक तरफ के इससे जुड़ा होता है इस ग्रुप से और इधर ये वाटर से जुड़ा होता है. जब ऑक्सीजन रिप्लेस करती है H2O को तो ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ oxyhemoglobin.
The iron heme complex is present in another class of protein called cytochromes. Cytochromes act as electron carrier which also play an essential part in metabolic process. In cytochrome, iron undergoes rapid reversible redox reaction like this. Ferric converted into ferrous and ferrous converted into ferric. Now, chlorophyll, the chlorophyll molecule which plays an essential role in photosynthesis also contains the porphyrin ring, but the metal ion there is magnesium ion rather than Fe2 plus. It is a green plant pigment and acts as photosynthesizer in the synthesis of carbohydrates in plant. It is structurally similar to heme. इस तरह से इसमें P4 नाइट्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं या आयरन की जगह मैग्नीशियम है पूरा स्ट्रक्चर ही जो हीमोग्लोबिन का है वो इस तरह से है फोर इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है. A molecule of chlorophyll can add one or two molecule of water axially. These coordinated water molecules through hydrogen bonding help the other chlorophyll molecule to associate with each other. Now, other example is vitamin B12. It is a complex of cobalt with a quaternary ligand, which is similar to porphyrin ligand of hemoglobin. It has been observed that vitamin B12 is active only when present in +1 oxidation state. It is a red crystalline substance which is slightly soluble in water. It is not found in plant but is found in animal tissue. It is present mainly in milk, eggs, cheeses, and meat. It is an essential growth factor for many microorganisms. उसके बाद एप्लीकेशन प्लांट ग्रोथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का. Plant requires a number of nutrients for healthy growth. Essential nutrients include a number of metals such as iron, zinc, copper, manganese, molybdenum, etc. For example, the deficiency of iron brings a disorder in plant known as iron chlorosis. This disorder affects the yield of fruit from citrus trees. Iron in +3 state present in the soil is mostly hydrolyzed to form insoluble iron hydroxide, which cannot be taken up by plants. To overcome iron deficiency, the complex Fe3 EDTA is added to the soil. This complex is soluble in water and readily enters the roots of trees and reaches to various parts of the plant where it is converted into useful compounds. Now in medicinal field, the complex of calcium with EDTA is used for the treatment of lead poisoning that readily replaces the calcium in the complex, and lead EDTA complex is finally eliminated from the body in urine. The platinum complex cis-PT-NH3 2 known as cisplatin is used as an anti-tumor agent in the treatment of cancer. तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो आज तुम लोगों ने पढ़ा. इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जब फार्मूला देख करके नॉमेनक्लेचर लिखना और नाम दिया हो और उसका फार्मूला लिखना. उसके अलावा कहाँ किस तरह के टर्म्स यूज होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारी चीजें डिस्कस हुई. इन सारी चीजों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, ध्यान से पढ़ें, बार बार वीडियो देखें ताकि देखने से ये सारी चीजें रट जाएंगी.